IVM. Hello and welcome to the Wire Talks. I'm Siddharth Bhatia. The Indian government has been regularly asking Twitter to take down posts, especially of those who are critical of it. Recently, it told Twitter to remove the tweets of a few people, and one of them was the cartoonist Manjul, whose cartoons appear all over the place. No one knows which particular department wrote to Twitter, but the social media platform in its notice which they sent to him said, "We are writing to inform you that Twitter has received a request from Indian law enforcement regarding your Twitter account, Manjul Toons, that claims that the content violates the laws of India." No details are available on what particular tweets violate which laws of India. Shortly after this happened, it emerged that this notice is often sent out to account holders. Manjul simply ignored it and went about his work, but almost immediately after, his contract with a news portal was abruptly cancelled. The cartoon has been in the business for many, many years, but rarely talks to the media or even publishes his photos online. His cartoons are very sharp, and I think they speak for themselves. I used to work with Manjul. We were together for many years, and he was even then critical of other prime ministers and governments. And today, he's our guest on this podcast, where he will tell us the background to what is happening, his philosophy of cartooning, and a little bit about his early days. Manjul, आपका Wire Talks में स्वागत है. Welcome to the Wire Talks. शुक्रिया सिद्धार्थ, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए. Okay, you've been a cartoonist for many years. How did you get into this field? Was it your childhood ambition, or did you wander into it by accident? And where did you begin your career? कब आए, कैसे आए, और कहाँ आए? Actually, मैं काफी यंग था, 16 इयर्स के करीब था, और उससे पहले से मैं कॉमिक्स वगैरह पढ़ा करता था. तो कॉमिक्स मुझे काफी अट्रैक्ट करते थे. उसके बाद 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ के बाद एंटी-सिख रायट वगैरह हुए, तो वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा. तो शायद वो मेरे पॉलिटिकल अवेकनिंग के दिन थे. उसके बाद राजीव गांधी का चुना जाना, बोफोर्स का स्कैंडल होना, तो उन सारी चीजों ने मुझे आसपास की घटनाओं में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाया. उस समय तक मैं शायद हाई स्कूल में पहुंचा था, तभी एक बार एक पुलिस वाले ने मुझसे रिश्वत मांगी और मुझे पता नहीं चला, लेकिन मतलब उसने मुझसे 10 रुपए उस समय लिए और मुझे लगा कि शायद वो कोई फीस है FIR लिखाने की, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो रिश्वत थी. तो वो उस बात से मैं इतना गुस्सा हुआ कि मैं उसके बारे में कुछ करना चाहता था और मैं एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में घुसा और मैंने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और मैं कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ. तो दैट इज हाउ इट इज स्टार्ट. अच्छा, was this a newspaper office? This was a newspaper office, and that is probably the largest circulating newspaper in India today. Okay. Name is Dainik Jagran. Okay, and they took your stuff. Actually, they rejected me. The editors rejected me, and I was going out. Suddenly, I saw a lady whom I saw her earlier also. She smiled at me, and I smiled at her, and she asked me, "क्या हुआ बेटे?" तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैं आया था और उन्होंने मना कर दिया है. तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आइए, और वो मुझे अपने साथ अंदर लेके गई. एंड सडनली शी टुक आउट 2-3 आर्टिकल्स फ्रॉम हर ड्रॉर्स एंड गेव इट टू मी एंड सेड कि देखिए इस पे कुछ हो सकता है क्या. तो वो, उनका नाम रजनी गुप्ता है, वो अभी भी ग्रुप में हैं. एंड लेटर आई केम टू नो दैट शी वाज वन ऑफ द ओनर्स. दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. Okay, so that's actually a really wonderful way to start. And since you said you wanted to do something, now over the years, if that we are talking about when you were a young schoolboy, and over the years you must have drawn many prime ministers, many ministers. I remember during the UPA days, you regularly made fun of Dr. Manmohan Singh and his government's policies. Did you ever, when you began in Dainik Jagran,
or after that, wherever else you work, did you ever get any pressure from authorities or from your editors who may have said, यार, this time you've gone too far? कभी कुछ ऐसा कोई प्रेशर आया क्या? जनरली रिक्वेस्ट रहती हैं, रिक्वेस्ट हमेशा रहती हैं, और प्रेशर मुझे मतलब इस बार से पहले, ये जो अभी करंट रिजीम है, इससे पहले केवल एक बार आया जब मैं लखनऊ में काम कर रहा था। तो जो उस समय वहां पर मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, और वहां से मुझे काफी प्रेशर था कि आप मुलायम सिंह को या तो उनके लिए फेवरेबल कार्टून ड्रॉ करें या उन पे कार्टून ड्रॉ ना करें। तो आई डिसाइडेड टू क्विट लखनऊ एंड आई डिसाइडेड टू मूव टू दिल्ली। तो वो एक प्रेशर था मेरे ऊपर 1995 में, पर वो प्रेशर, जो अभी प्रेशर हम लोग झेल रहे हैं, उसके सामने कुछ भी नहीं था। तो वो बहुत ही माइल्ड सा प्रेशर था, अब तो ऐसा लगता है। तो ये डॉक्टर सिंह के जमाने में क्योंकि कई कार्टून्स मुझे याद है बहुत ही शार्प थे, बहुत ही, क्या कहते हैं हिंदी में, कटाक्ष भरे। मेरी हिंदी आप जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी। तो कभी यूपीए गवर्नमेंट में किसी एडिटर ने कहा या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि भाई ये क्या है? देखिए, लोगों ने जनरली, क्या होता है कि लोग जब आके आपसे ये कहते हैं ना कि आप मोदी के खिलाफ बना रहे हैं, आपने उसके खिलाफ कभी नहीं बनाया, इसके खिलाफ कभी नहीं बनाया, तो उसकी एक वजह ये होती है कि उन्होंने ना तो आपका पूरा काम देखा होता है, ना उन्हें ये पता होता है कि क्या चल रहा है। जितने कार्टून मैंने मनमोहन सिंह के खिलाफ बनाए हैं उनके 10 सालों में, आई सीरियसली थिंक कि मैंने शायद ही किसी प्राइम मिनिस्टर को इतना ड्रॉ किया होगा। मतलब वाजपेयी जी को भी इतना ड्रॉ नहीं किया होगा जितना मनमोहन सिंह के खिलाफ किया है। और ये तो बिल्कुल तारीफ करने वाली बात है कि कम से कम 2004 से 2014 तक मुझे एक भी इस तरह का किसी से भी, इवन एडिटर्स से भी, ये नहीं आया कि साहब ये नहीं बना। मतलब एक बार भी नहीं हुआ। भाई एडिटर्स भी उस जमाने के थोड़े अलग थे। I don't think, I mean, I don't blame the editors today. They have to do their job, but some of them may be over-enthusiastic. So do you think that has changed a lot, the type of journalists who are running organizations and newspapers and television stations? पहले अखबारों में मैंने एक चीज नोटिस की थी कि देखिए, जो खबरें होती थी उनके बारे में अखबार की एक पॉलिसी होती थी कि वो खबरें बहुत ऑब्जेक्टिवली डिस्प्ले की जाए। मतलब उसमें किसी तरह का कोई भी आदमी स्टैंड नहीं लेगा। जो उनका एडिट पेज होगा वो अखबार का जो अपना व्यू पॉइंट है या जो एडिटर का अपना व्यू पॉइंट है वो उसको दिखाएगा। मतलब वो उसके बारे में लिखेगा, उसके आर्टिकल्स वैसे ही होंगे। ये उनका प्रोग्रेटिव था। वो एडिट पेज पे अपनी जो बात थी वो कहते थे, और जनरली मोर और लेस कार्टून को छुआ नहीं जाता था, क्योंकि उसके लिए ये माना जाता था, या तो वो ये मानते थे कि ये बड़ा नॉन सीरियस सा इश्यू है, इसको कोई सीरियसली नहीं लेता, तो इसको जो कर रहा है करने दो, या फिर वो कार्टून की सैंक्टिटी में बिलीव करते थे और उनको लगता था कि ये सटायरिकल चीज है, जो भी लोग पावर में उनके खिलाफ है, तो इस पे ज्यादा वो जरूर ये देखते थे कि वो लीगली इस तरह से ना हो, कुछ इस तरह की बात आप ना कह रहे हो जो लीगली ट्रबल पैदा कर दे। लेकिन इस तरह का कभी मैंने सेंसरशिप जैसा कभी कुछ नहीं देखा। Manjul, you specifically mentioned 2004 to 2014. And in fact, the last 3 years of the UPA government were really very rough on it. But when did you sense that things were changing? Vis-a-vis just not cartoonists, but in general. When did you begin to feel? सिद्धार्थ, हम लोग असल में है क्या कि जिस समय हम लोगों की ट्रेनिंग हुई तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब मैंने कोई जर्नलिज्म का कोर्स वगैरह नहीं किया था, तो मैं साइंस को स्टूडेंट था और कार्टूनिंग में आ गया। तो जो हमारे उस समय के एडिटर्स थे उनकी एक खास, मतलब एक होता है ना जो आपको शुरू में सिखाया जाता है, जैसे वो ये कहेंगे कि यार कार्टून में वर्ड्स कम होने चाहिए। मतलब हर एडिटर आपको ये बताएगा कि वर्ड्स कम होने चाहिए, मिनिमम वर्ड्स होने चाहिए। तो उसी समय उन लोगों ने भी जो चीजें आपके उसमें रखी वो ये थी कि भाई देखिए, जब भी कोई सरकार नई आती है तो आपको उसको थोड़ा समय देना चाहिए चीजों को समझने और काम करने की। तो जिसको जनरली अखबार की दुनिया में हनीमून पीरियड कहते हैं, कि उस पीरियड में लोग सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, वो उनको मौका देते हैं ताकि वो देख सकें कि भाई वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 2014 में जब ये सरकार आई तो हम लोगों के लिए भी काफी होप लेके आई थी, क्योंकि उससे पहले तमाम सारा इस तरह का माहौल था कि
पिछली सरकार पे तमाम सारे आरोप थे घोटालों के वगैरह वगैरह, पॉलिसी पैरालिसिस था। तो हर कंट्री के हर आदमी की तरह तमाम सारे लोगों की होप थी कि ये सरकार कुछ चेंज करेगी, कुछ नया करेगी, कुछ बेहतर करेगी, और ये लोग आए भी काफी बड़े प्रोमिसेस पे थे। तो 2014 से मेरे ख्याल से शुरू हुई चीजें, 2016-16 तक तो एक तरीके से हम लोगों ने कभी गवर्नमेंट को हार्ड हिट किया ही नहीं। मतलब अगर छोटी मोटी चुटकी ली गई हो तो वो बात एक अलग है, ठीक है। लेकिन डिमोनेटाइजेशन के बाद स्पेशली चीजें, मुझे लगता है लोग थोड़ा गवर्नमेंट के लिए क्रिटिकल होना शुरू हुए, और खासतौर से कार्टूनिस्ट भी। लेकिन तब भी मुझे लगता है इस गवर्नमेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं थी। वो ट्रॉल्स वगैरह का पीछे आना और गाली वाली देना, वो सब तो एक सामान्य सी बात हो गई है आजकल। वो जरूर था, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह का कुछ ज्यादा नहीं था। लेकिन वो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और जैसे जैसे ये लगने लगा है और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सरकार तमाम सारे मोर्चों पर विफल रही है, तो लग रहा है कि सरकार का जो स्टैंड है क्रिटिसिज्म को लेके, वो भी धीरे धीरे सख्त होता जा रहा है कि वो अब वो कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। वो जरा भी ये बात नहीं सुनना चाहते हैं कि साहब आपने गड़बड़ की। तो ये जो स्टैंड है, ये मुझे लग रहा है शुरू हुआ है 18 के आसपास से, 2018 के आसपास से, और चाइना के इन्वेजन के टाइम और कोविड सेकेंड वेव के टाइम, तो जिन लोगों ने भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है, उस वाइसेस को या उस तरह की किसी भी क्रिटिसिज्म को किस तरह के काउंटर क्रिटिसिज्म से दबाया गया है, वो तो सभी जानते हैं, वो तो पब्लिक नॉलेज। तो मंजुल, एक दो सवाल अंग्रेजी में रिप्लाई करो। So, when did you personally begin to sense this? When did you feel that, now even I, who am doing these cartoons for many years and didn't really feel it that much, unlike, say, journalists, or when did you first get the hint that things are going to be not so good for people like you also? See, we have been listening this from this government that whatever is happening today or whatever bad is happening today is basically due to Congress regime, or like past 70 years, because they didn't do anything. That's why we are facing all these difficulties, and that is why they are unable to do something for the country. So this narrative was there for quite some time. What happened exactly when this China invasion took place? That was the time probably I realized, because I have seen two major China invasions during UPA's time. And I remember very vividly what happened during that time, how media covered it, how people criticized it, how government reacted to it. Okay. So this time around, I realized that government was not willing to even tell the truth. Even Prime Minister didn't take China's name till now. So that was probably the moment when I realized that this government is more for managing headlines rather than doing something about the situation. I realized that this government, like any other government, is all for cover-up. They are not going to give you the clear picture, the true picture. So that makes you suspicious of their every move. Like whatever they do, then your level of suspicion goes up, whether they are telling you the truth. And soon after that, we have seen there were many instances when people came on TV, said something, and soon after that, experts gave their opinion, they gave us facts, and we came to know that the person who was talking on TV was basically lying to people. And then this COVID second wave happened, or the lockdown happened, and the way lockdown was announced, so that time probably I thought that that was the only way that the virus could have been stopped. But soon after that, when we saw visuals of those workers walking like hundreds of kilometers to their native places, that was heart-wrenching. And we also saw that government did nothing. We never heard from any government authority to like saying something sympathetic towards them.
but we saw visuals of like police lathi charging those migrant workers. तो ये सारी जो चीजें थी, इनसे आपको काफी ये लगा कि ये सरकार जो कह रही है और जो ये कर रही है उसमें बहुत जमीन आसमान का। जब आपको सबसे पहला हिंट कभी आया डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट, कॉमेडियंस, एक्टिविस्ट के बारे, स्टूडेंट्स वगैरह के बारे में तो पढ़ रहे थे, बट आपको पहला हिंट कब आया कि ये कार्टूनिस्ट को अभी नहीं छोड़ने वाले? देखिए, ये इस तरह की बात है कि कोई भी आपको आके नहीं कहेगा कि साहब आप इसके खिलाफ मत बनाइए। हालांकि मेरे केस में तो मुझे लोगों ने सीधे भी कहा कि आप इसके खिलाफ मत बनाइए। आई डोंट वांट टू नेम देम, ओके। पर उससे पहले जो हुआ वो ये हुआ कि यार ये जो है ना, यू सी यू कैन डू बेटर, तो लाइक एडिटर्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। एंड व्हेन यू स्टार्ट noticing that which are the cartoons where you are being told that you can do better, so what is the common thing in all those visuals? So you see that there is only one guy who is appearing in all those cartoons. Probably when editor realized that I was not taking hints, so they told me that please don't draw these two guys directly. Yeah. So, and also I have noticed that then I started talking to other cartoonists who are in other publications. Then I started noticing the work which is being published in other newspapers. And then I realized that probably the same instructions were given to other guys also. So you are a bit specific. You said somebody told you, please don't draw these two people. I presume you mean from the central government. The Prime Minister and the Home Minister. And the other thing is, after a year or so, one more name was added. Okay, so it started with two people, then it became three people. Okay, so but see, as a cartoonist, it seems very unfair to me that I am drawing, like I can draw anybody else, but I cannot draw a certain people because I've been asked not to draw those guys. And in fact, I was so what would you call it, that I was so upset that I tried to talk some of my friends who have close RSS connections and told them this thing. So they said that this is not possible. So I said no, this is happening. So they again said no, this is not possible. This cannot happen. And then they, after a few days, they called me and they said they tried to find out, and they probably got in touch with the like topmost people in the government, and they have been told no, this is not possible, and Prime Minister appreciates cartoons a lot. So I thought that probably it is happening from the editor's level. But like I said, then I started talking to other cartoonists, and I realized that it was not true. That there was similar situation for all others also. After that, when I tried to ask my editors, they told me, look, just avoid drawing these. So that was first time I was told, in a sense, clearly that don't draw these. But Manjul, knowing you must have continued to draw. Yeah, actually, see, it is very unfair. Like if I'm drawing a certain person and I'm not drawing some other guy, or I'm not allowed to draw. See, this is altogether different thing that I draw somebody, I don't draw somebody because of 100 other constraints. Like I don't, suppose today I have 10 topics to draw, but I can draw only 2 or 3. So I'll have to leave all 7 other topics, but that is my prerogative. But if somebody comes and tells me, okay, you can't draw on these 7 subjects, but you can draw on these 3. So that is pretty difficult and upsetting for me. So what I did, that I started my Patreon account and I started drawing those cartoons for unlimited readership who was there on Patreon. Or sometimes if I got an extra idea, I used to draw it for my Twitter readers or
माय सोशल मीडिया रील. So I started putting those cartoons there. So गवर्नमेंट के सपोर्टर्स होते हैं, उनका एक ही सवाल हमेशा होता है, अरे आपने ऑपोजिशन लीडर्स के बारे में कभी कार्टून नहीं बनाया. तो उसका जवाब आप कैसे देते हैं? तो मैं उनसे, देखिए, एक तो ये है कि मैं उसमें कोई सफाई देने के उसमें हूं नहीं, ना मैं पढ़ना चाहता, लेकिन वो 2004 से लेके 2014 तक देख लें, और किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि भाई आपने अडवाणी जी को नहीं बनाया, आपने मोदी जी को नहीं बनाया, आप केवल जो है वो सोनिया गांधी को बनाते हो, राहुल गांधी को बनाते हो और मनमोहन सिंह को बनाते हो. देखिए, ये सरासर बेवकूफ़ी की बात है. कोई आके आपसे ये नहीं कहता कि भाई आप नॉर्थ ईस्ट जो है उसके जितने चीफ मिनिस्टर हैं उसके कितने कार्टून बनाए आप, और किसी कार्टूनिस्ट ने कितने बनाए. आप किसी भी हिंदुस्तान के कार्टूनिस्ट को निकाल लीजिए और उनसे पूछिए कि साहब आपने नॉर्थ ईस्ट पे कितने कार्टून दो. देखिए, कार्टून का सिंपल मामला ये है, और बस साफ साफ मामला ये है कि जो न्यूज ऑफ द डे है आप उस पर कार्टून करें. न्यूज ऑफ द डे कौन लोग जो हैं वो न्यूज मेकर्स हैं, जो न्यूज ऑफ द डे में आते हैं, वो लोग हैं जो लोग पावर में हैं. उसमें भी इंडिया में इस समय जो पावर का स्ट्रक्चर है वो ये है कि छोटी से छोटी बात होती है, बड़ी से बड़ी घटना होती है, कुछ भी होती है, आपको एक ही चेहरा दिखाई देता है जो सारी चीजें अनाउंस करता है, जो सारी चीजों के लिए जिम्मेदारी लेता है, जो सारी चीजों के लिए बताता है कि मैंने ये किया. अगर कोई और भी ये बताता है कि ये चीज हो रही है तो वो ये कहता है कि नहीं साहब ये तो फला के आशीर्वाद से हो. तो ऐसी स्थिति में अगर आप उससे ये कह रहे हैं कि साहब आप उस आदमी को हटा दीजिए. यूपीए में तो फिर भी ये माना जाता था कि मनमोहन सिंह वीक प्राइम मिनिस्टर हैं और जो कुछ हो रहा है वो सोनिया गांधी करवा रही हैं, और उसमें फिर भी आपको 5 मिनिस्टर ऐसे मिलते थे जिनको आपको पता चलता था कि ये काम जो हुआ है ये फला मिनिस्टर ने किया है, और आप खिंचाई कर सकते कार्टून. यहाँ पे तो ले दे के आपके पास एक ही चेहरा है, जो भी अनाउंस होता है, जो कुछ भी होता है वो हमेशा वही सामने. तो किसी भी कार्टून के लिए तो इम्पॉसिबल है ना कि बगैर उनके उस चेहरे को लिए हुए आप कार्टून ड्रॉ कर सकते. So I've been seeing your cartoons for the past few days, and the Twitter notice came to you suddenly. An old contract of yours was stopped. But I've been seeing your cartoons on Twitter and maybe elsewhere too. You've not stopped what you have been doing all along. You continue to remain the cartoonist you were 2 months ago. See, वो एक तरीके से इस तरह की बात है कि मैं उसके अलावा कुछ जानता नहीं. मैं उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता. मतलब मुझे कुछ और आता नहीं, तो मैं कार्टून ही ड्रॉ कर सकता हूँ. मैं कार्टून ड्रॉ कर, अगर मान लीजिए ट्विटर फेसबुक वगैरह नहीं होता, आज अभी पुराने दिन चल रहे होते जहाँ पे केवल न्यूज़पेपर्स हुआ करते, तो भी शायद मैं ये कर रहा होता कि मैं उनको ड्रॉ करके रख लेता, परेशान रहता क्योंकि वो कहीं छप नहीं सकते थे. अभी कम से कम ये है कि आपके पास सोशल मीडिया है, आप उनको ड्रॉ करके वहाँ पे डाल सकते हो, तो कम से कम कुछ रीडर्स तो उसे पढ़ ही रहे. So in one of your cartoons you said recently that cartoonists show a mirror to society. Now that's a very perceptive remark. तो ये शीशा देख के, मिरर देख के लोग अपने आप को देखते हैं, तो ये आपका क्या कहना था? देखिए, इसमें होता क्या है कि जो लोग भी पावर में आते हैं, आप अगर मतलब इसमें आप किसी को भी कुछ और नहीं देखना चाहिए. आप केवल किसी भी आदमी को ऐसे देखिए कि जो कोई आदमी पावर से बाहर है तो उसकी बातचीत कैसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसके स्टेटमेंट कैसे हैं, और जब वही आदमी पावर में है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके स्टेटमेंट, उसका व्यवहार जो है वो कैसे बदल जाता है. कार्टूनिस्ट केवल ये बताता है कि भाई आप, ऐसा नहीं है कि पावर जो कि लोगों ने आपको दी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने वो अर्जित की है कहीं से आप उसको लेके आए. तो बेसिकली लोगों ने आपको भरोसा करके दी है क्योंकि लोगों ने आपका वो चेहरा देखा है जब आप पावर के बाहर थे उस समय. तो ये जो पावर आपको मिली है एक सर्टेन गोल्स को अचीव करने के लिए मिली. कार्टूनिस्ट का काम केवल ये होता है कि जब आप हवा में उड़ने लगे या आपको लगने लगे कि नहीं वो पावर जो है उसको आप डिजर्व करते हैं और वो किसी काम के लिए नहीं मिली है और वो तो आपको मिलनी ही चाहिए, तो आपको केवल इतना एक मिरर ये दिखा सके कि भाई असल में आप वही आदमी हैं जो आज से 4-5 साल पहले थे और आपको उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए. तो इससे ज्यादा हम लोगों का कुछ काम नहीं है. और वो आप एक थोड़ा ह्यूमरस तरीके से, थोड़ा सिविल तरीके से, थोड़ा मजे के साथ
इस बात को कहते हैं ताकि रीडर्स जो हैं वो उसको एंजॉय कर सकें। और देखिए, कोई भी कार्टून रीडर से तभी कनेक्ट करता है जब रीडर भी वैसी ही फीलिंग्स उनके मन में भी हो, रीडर्स के मन में भी हो कि हाँ वो भी उस घटना के बारे में वैसा ही सोचे। तो अगर कोई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और कोई कार्टूनिस्ट जो है वो फिर भी उस पर कार्टून बना रहा है, तो वो कार्टून कभी भी रीडर्स के साथ कनेक्ट नहीं करे, क्योंकि रीडर्स को हमेशा ये लगेगा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर। तो वो इस किसी भी सरकार को कार्टूनिस्ट वगैरह से या क्रिटिक्स से या ह्यूमरिस्ट से या स्टैंड अप कॉमेडियन से इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो वो लोगों को दिखाई देगा ना। अगर अभी मान लीजिए ग्रोथ रेट जो है वो 15% हो जाएगी तो मैं क्या कार्टून बना पाऊंगा? मैं नहीं बना पाऊंगा ना कार्टून। तो उनको ध्यान इस पे देने की बजाय कि मैं कार्टून बना रहा हूँ, उनको ध्यान इस पे देना चाहिए कि कैसे इकोनॉमी ठीक हो। तो पिछले 5-7 सालों तो यही बताते रहे, शुरू 14 से लेकर 18 तक। तो आज अभी मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था कि 14 से 18 तक जो था वो मोदी जी ने इकोनॉमी रिवाइव कर दी थी, और उससे पहले इकोनॉमी जो थी वो शैम्बल्स में उनको मिली थी, जो कि हो सकता है सच बात थी। तो अगर 18 तक उन्होंने रिवाइव कर दी थी, तो बाकी सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बाकायदा आंकड़ों की आधार पे ये बात कह रहे हैं कि पिछले 8 क्वार्टर 9 क्वार्टर से इकोनॉमी आपकी ड्रॉप हो रही थी, और अगर कोविड नहीं भी आता तब भी इकोनॉमी की हालत खराब ही थी। तो वो क्यों कह रहे हैं? अगर रिवाइव की हुई इकोनॉमी ऐसी होती है तो फिर जो अगर इकोनॉमी खराब होती तो फिर वो कैसी? तो ये छोटे मोटे सवाल हैं जो लोगों को धीरे धीरे समझ में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी को छूते हैं। अगर दाम बढ़ेंगे तो उसका असर हर आदमी पे होगा। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उसका असर हर आदमी पे होगा। वो एक सीमा तक हो सकता है उसे ना कहे या वो ना कहे, लेकिन अगर आप उसे कार्टून बनाएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ ये बात सही है, और वो उस कार्टून पे हंसेगा। तो सरकारों को ज्यादा ध्यान इस पे देना चाहिए कि वो अपने काम को दुरुस्त करें, बजाय इसके कि वो कार्टूनिस्ट के काम में इंटरफेयर। So, of course, you mentioned the economy and economic growth, but what are the other issues that you have been continuously pointing out and drawing on? For example, is it intolerance? Is it communalism, which is growing, or is it the failure of government policies on every front? Do you have a sense that some subjects must also be commented upon, and do you comment on those things? See, हम लोग तो बेसिकली जो आयरनी होती है उस पर ही ज्यादातर कमेंट करते हैं, और वो ऑब्वियसली न्यूज ऑफ द डे के साथ उसको ट्रीट करने का तरीका भी बदल जाता है। अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि चाइना वाली घटना ने मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार के काम करने के तरीके के बारे में सोचने में मजबूर किया, क्योंकि एक ऐसी सरकार जो अपने आप को बाकायदा घोषित करके आई है कि वो नेशनलिस्ट है, और वो उन चीजों में बिलीव करती है जो नेशनल के बड़े सिंबल्स। तो वो कैसे इस बात को अलाउ करती है कि कोई दूसरा कंट्री आपके घर में घुस के बैठ जाए और आपके मुंह से ये आवाज तक निकले कि ये गलत हुआ। और जो भी आप उसके बात करें उसमें मैक्सिमम चीजें इस तरह की हों कि हेडलाइन मैनेज हो जाए, आपका चेहरा चमक जाए, बजाय इसके कि उसको बाहर किया जा सके। तो वो एक बड़ी चीज थी जो, जैसा मैंने कहा कि उसकी वजह से आपका जो मन था वो काफी, उसको एक तरीके से सरकार के बारे में सोचने का तरीका जो था वो आपका बदला। दूसरा ये भी है कि जो और भी तमाम इश्यूज हैं जिनकी आपने बात की, जैसे इस सरकार की तमाम सारी इस तरह की अप्रोच है कि जिससे मुझे लगता है कि सोसाइटी में जिस तरह की दिक्कत क्रिएट हो रही है वो एक लंबे समय तक किसी भी सोसाइटी को हील होने में, उस दिक्कत से हील होने में बहुत समय लगे। वो एक अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। जब आप पावर में आते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। आप इस तरह का समाज नहीं तैयार कर सकते जो समाज के रहने वाले हर आदमी को अगले 30, 40, 50 साल के लिए इतना एक दूसरे के प्रति संशय करने वाला बना दे। आप हमेशा एक किसी व्यक्ति के ऊपर इसलिए संशय करते रहो क्योंकि उसकी जो जाति धर्म वगैरह है वो आपसे अलग है। तो वो इस तरह का समाज जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हालत में कभी भी प्रगति कर सकता। ये एक बड़ी चिंता है जो मुझे इस सरकार से जुड़ी हुई लगती है कि वो जो
सबका साथ, सबका विश्वास वाला जो मामला है, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो नारा भी मुझे थोड़ा सा दिक्कत करता है कि जो ये कह के आए थे उसको ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर। वो सोसाइटी के तमाम सारे लेवल्स पे आपको ये दिखाई देता है कि वो विश्वास जो है वो कम हुआ है, वो बढ़ा नहीं। So, who are your role models who you saw while growing up and as a professional who did that very task of pointing out the failures of the government, holding a mirror to society? Do you take inspiration from any of them? I think this is first time, though when you go to cartoon history, you realize that earlier also there were cartoonists who have been drawing, in a sense, for the government or for these kind of forces. But I started in 88, 89, and since then, the cartoons I read, I realized almost every cartoonist was going after the current regime. It was not like that cartoonists were blaming opposition. Like nobody blamed VP Singh for Bofors scandal. During Narasimha Rao's time, people would draw all kind of cartoons against Manmohan Singh and his economic policies. And now I see that after 25 years, people are praising Manmohan Singh and Narasimha Rao for those economic policies. But I saw that time when people were drawing, every cartoonist was drawing against Manmohan Singh. They were drawing against Narasimha Rao. So I think that I am inspired with all the cartoonists, the collective spirit of those cartoonists, that this is your job, you have to do this only, nothing else. So I learned from those cartoonists, almost every cartoon which I have seen in the past 20, 30 years. And even today, there are anonymous cartoonists who have been doing this kind of job on social media. They are not associated with any publication or so, but this new tribe has emerged soon after the newspapers stopped carrying good cartoons. So we started seeing these cartoons coming in social media. Most of them are anonymous, and they are doing a great job. So what are you going to do next? At the moment, there is social media. You are publishing here and there. But do you think the government and its agencies will stop right here? Not about you only, but even the others who've been journalists, etc., who've been sent these notices. I seriously doubt. Because see, the thing is, to stop this criticism, there are only two ways. The one way is hard work, like government work for improving the things. The other way is to manage the headlines. So I think that government is not going for hard work the other way. So they will try to manage the headlines. So the easiest way to manage the headlines is stop all kind of criticism. Right now, what I'm seeing is the government is taking the other route. तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का कुछ करेंगे जिससे उनको ज्यादा मेहनत करके चीजों को वो इम्प्रूव कर सके। और दूसरी बात जो आपने कही कि मैं क्या करूंगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक मैंने सोचा नहीं है। मैं अभी भी इतना सारा कुछ हो गया है 1-1.5 हफ्ते में, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक चीज ये रियलाइज की है कि जब ये हुआ कि मैं जो भी कार्टून ड्रॉ करूंगा वो केवल अपने लिए करूंगा, तो उस दिन मैंने बहुत रिलैक्स मन से कार्टून बनाया और मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। तो पिछले 3-4 कार्टून जो मैंने किए हैं वो मुझे इसलिए बहुत अच्छे लगे क्योंकि उनको करने से पहले मुझे कुछ भी ये सोचना नहीं था कि मैं ये बनाऊं कि मैं वो ना बनाऊं। हर तरह की सेल्फ सेंसरशिप जो थी वो बिल्कुल गायब थी। तो वो एक मजेदार बात हुई है। हालांकि इसमें एक दिक्कत ये भी है कि मतलब केवल इस चीज से आपको जिंदगी में पैसे की जरूरत है और इस चीज से आप केवल आपके बिल्स नहीं पे कर सकते। तो उस फ्रंट पे मुझे थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा। अभी तो नहीं सोचा है, लेकिन करेंगे कुछ ना। लेकिन आप अपने कार्टून बनाते रहेंगे और जो चीज आपको गलत लगी उसकी आलोचना करते रहेंगे। हाँ, वो तो उसके मैंने पहले भी कहा, उसके अलावा मुझे कुछ और काम आता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब कल किसी और की सरकार आ जाएगी और तो मैं ये काम बंद करना चाहूंगा। मेरा काम कार्टून बनाना है, उसका सरकारों से या
कोई रिजीम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल दूं कि अभी कुछ दिनों पहले तक महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना की सरकार, तो मैं महाराष्ट्र के एक लोकल पेपर के लिए कार्टून करता था, तो उस समय मैंने तमाम सारे कार्टून जो थे वो देवेंद्र फडणवीस पे किए क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन जब से वो सत्ता से बाहर गए तब से उनकी जगह जो है मेरे कार्टूनों में वो उद्धव ठाकरे ने ले ली। तो ये बदलाव जो है वो किसी भी कार्टूनिस्ट के लिए सहज है, स्वाभाविक है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि उसको कुछ एफर्ट लगानी पड़ती। कल अगर देवेंद्र फडणवीस वापस आ जाएंगे तो फिर वो मेरे कार्टून्स में वापस आ जाएंगे। तो आपने मुझे एक बार कहा था, मुझे याद भी है कि one of the people you used to draw was Bal Thackeray. Now it is his son, and Bal Thackeray himself being a cartoonist, Uddhav Thackeray being a photographer. Did Bal Thackeray or any of the Shiv Sena people ever call you or go after you? Never. See, I never met Bal Thackeray or I never met any Sena people. Okay, see, जब से आप कार्टूनिस्ट में आप ये भी कोशिश करते हैं कि आप पॉलिटिशियन से ना मिलें। और मेरे ख्याल से अपने 30 साल के करियर में एक बार मैं ऑफिस में एक पॉलिटिशियन से मिला हूँ, उनका नाम था सुंदरलाल खटवा। वो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वो हमारे ऑफिस में आए। और चूंकि सबसे कहा जा रहा था जाके मिल लीजिए, और मैं बहुत यंग था, मैं जाके उनसे मिल लिया था। और सीनियर्स ने उसके बाद ऐसी झाड़ लगाई थी, या तुम कार्टूनिस्ट हो कि तुम क्या हो, मतलब चीफ मिनिस्टर से मिलने चले गए थे। तो उस घटना ने ऐसा असर डाला कि उसके बाद से मैं पॉलिटिशियन से मिलना तो हमेशा ही अवॉइड करता हूँ, कभी भी नहीं। मैं कभी भी शिवसेना के किसी आदमी से नहीं मिला। लेकिन मैंने यहाँ पे, मेरे ख्याल से मैं बम्बई आया था या मुंबई आया था 2005 में, और 2005 से 2017 तक तो बाकायदा मुंबई के एक बड़े अखबार में बाल ठाकरे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे सबके कार्टून छपे। कभी भी मेरे ख्याल से किसी एडिटर के पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं, किसी तरह का कोई मैसेज कभी नहीं आया। ना प्रशंसा का आया, ना इसका आया कि भाई आपने ये क्या बना दिया, इस तरह का कभी कोई मैसेज। तो आई होप मंजुल, फॉर your sake, for our sake, for everybody's sake, every Indian's sake, I hope those days return. But more importantly, I hope that you continue to do your wonderful job, because you have a lot of fans who like to read what you do. And cartoonists, comedians वगैरह की सोसाइटी में बहुत ही ज़रूरत है। So I think you will have support from everyone, and may you continue to make us think and laugh with your witty criticism of the people in power. Thank you for joining. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. You spoke frankly. As I said in the introduction, you are not a media personality. You don't like to be in the media, but thank you very much for talking to the Wire Talks. And hope to see you and talk to you again offline. Thank you, Siddharth. That was Manjul, the well-known cartoonist, currently facing a lot of pressure from various authorities. But knowing him as I do and seeing his work, as we have all seen, I don't think he's going to stop anytime soon. And that's how it should be. Please join us next week for another guest on the Wire Talks. You can check out this podcast and other interesting ones on the Wire website, the IVM podcast website, app, or wherever else that you get your podcasts. Goodbye from me, Siddharth Bhatia, and the Wire Talks podcast team. I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsor on the network this week, Credencia. Thank you so much for making this possible. On Cyrus Says, Cyrus was joined by actress Shreya Pilgaonkar to talk about her career in acting. On Begin the Journey, Ashish Vidyarthi lists down the modern concepts of friendship and how one can choose the right friend circle in life on Begin the Journey.
On The Habit Coach, Ashton Doctor was joined by Aisha Bilamoria to talk about running and developing an athletic mentality. Farhad and Sunitra are joined by LGBTQ workplace advocate Suresh Ramdas to discuss the new normal in queer relationships on KBCD. On Tere Mere Raaste, Keshav Chaturvedi takes us to the riverbanks of Banaras and describes the soulful mornings to us. And finally, on the Positively Unlimited podcast, Chetna Chakravarti takes the fear out of the word responsibility. And with that, I hope to see you again next week. Working Monday to Friday glued to your chair making you feel dull? Worry not. Get your 5-minute weekly dose of travel around the world with Postcards from Nowhere. Join me every Thursday as I explore the strange, obscure and fascinating parts of the world and bring out facets of travel you may not have thought of before. You can find us on the IVM Podcast app, website or wherever you get your podcast from.